Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is third and the last part of the lesson On the Face of It, written by Susan Hill. Now in this part, we are going to wind up this lesson and I hope that you must have watched part 1 and part 2 and you understood it very well. So now in this third part, we are going further and before starting, we must discuss about the previous parts we have already done. That in the previous part we have done that Derry and Mr. Lamb, they were talking to each other in the garden, in Mr. Lamb's garden, and while talking, we came to know that Derry was very much influenced by Mr. Lamb. बहुत सारी बातें उससे सीखी, उनसे शेयर करी, and when he was talking to him, he told him that many people talk about him, means talk about Mr. Derry, about his burnt face, and they are afraid of him. Then Mr. Lamb told him that why do you bother that the people are talking about you? And why do you think so that people are talking about you or people are having so much interest in you? तुम ऐसा क्यों सोचते हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें ही लेके सोच रहे हैं? क्यों? कोई रीज़न भी तो होगा इसके पीछे. सो उन्होंने बहुत सारी बातें उससे ऐसी शेयर करी और उसको बोला कि मैं यहाँ बैठता हूँ, आई वॉच, लिसन एंड देन थिंक. सो सेम वे उन्होंने मिस्टर लैम उनको कहते हैं, डेरी को कहते हैं that if you want to help me, you can come anytime. The gates are always open for you, and even the house is also open for you. If it's my house as well as yours house also. So अब वो दोनों almost we came to know that they have become friends. अब डेरी और मिस्टर लैम दोनों फ्रेंड्स तो बन चुके हैं और डेरी इस बात को एडमिट करने को तैयार नहीं है कि मिस्टर लैम उसके फ्रेंड है. क्यों? क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि वो अपने फ्रेंड्स खुद बनाएगा, वो खुद चूज करेगा अपने फ्रेंड्स. और वो ऐसा ही कहता है मिस्टर लैम को कि आप मुझे अपना फ्रेंड मान सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू से दिस थिंग दैट यू आर माई फ्रेंड बिकॉज आई चूज माई फ्रेंड्स माई सेल्फ. And as we have seen that Mr. Lamb told him that Derry, you can come anytime, whenever you want to come. So Derry was a little bit hesitating. And what he said that if I'll come, the other people or the other children who normally come to your garden, they won't come because they will be afraid of me. और तुम्हें ही अब चूज करना पड़ेगा. मिस्टर लैम से ऐसा कहता है कि तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि या तो तुम मुझे बुलाओ या उन सबको बुलाओ, बिकॉज अगर मैं यहाँ आऊंगा तो बाकी सब नहीं आएंगे. So now let's see what Mr. Lamb says to him. Mr. Lamb says, they might not. You would have to take the risk, so would they? No, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. I have not moved. No. When I go down the street, the kids shout lammy lamb. But they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. Did you get your leg blown off in the war? Certainly. How will you climb on the ladder and get the crab apples down then? Oh, there are lots of things I have learned to do. And plenty of time for it. Years, I take it steady. Now, Mr. Lamb says, जब वो ये कहता है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा because the children won't come because they will be afraid of me. अब मिस्टर लैम कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, might be or might not be. अब वो क्या उसको बोलते हैं कि तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा. मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा और डैडी कहता है कि मुझे नहीं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को सबको लूज कर दोगे. दे वोंट कम और वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे बिकॉज ऑफ मी. एंड नाउ ही सेज दैट दे कैन हेल्प इट. अब वो नहीं रुक पाएंगे. तो वो कहता है कि मैं तो नहीं मूव किया यहाँ से, तुम यहाँ खड़े हो एंड इवन आई एम टॉकिंग टू यू बट आई हैवंट मूव. मैं तो नहीं मूव किया यहाँ से. तो कहते हैं अब मिस्टर लैम कहते हैं कि जब मैं जाता हूँ स्ट्रीट पे तो चिल्ड्रन दे यूज टू प्ले ओवर देयर एंड दे कॉल मी लैमी लैम. लैमी लैम आप जानते हैं, जैसे कोई लंगड़ा होता है बच्चे उसको चिढ़ा के जैसे बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे इस तरह से इस नाम से मुझे बुलाते हैं. स्टिल दे कम इन टू माई गार्डन, मेरे गार्डन में भी आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं. एंड इट्स अ गेम फॉर देम. जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं बच्चे और वो कहीं कहीं छुप जाते हैं, ऐसे उसके गार्डन में भी छुपते हैं, उसके हाउस में भी छुपते हैं. तो कहते हैं वो आते हैं, स्टिल इट्स अ गेम. और फिर भी मुझे वो ऐसा बोलते हैं लैमी लैम. तो वो मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता. सो नाउ व्हाट ही सेज कि जब मैं उनसे नहीं डरता इसलिए वो मुझसे नहीं डरते. तो सेम वे अगर तुम उनसे नहीं डरोगे तो वो तुमसे नहीं डरेंगे. इसका मतलब कि अगर तुम उनके साथ भी फ्रेंड होगे, तुम उनसे फ्रेंडली बिहेव करोगे, दे विल ऑल्सो बिहेव फ्रेंडली विद यू. सो नाउ व्हाट ही सेज दैट अब वो
नाउ ही इज़ वेरी मच क्यूरियस अबाउट मिस्टर लैम्स लेग। उनकी टिल लेग के बारे में वो जानना चाहता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि उसने अपना तो बता दिया कि मेरा बर्न फेस कैसे हुआ एसिड से। अब वो कहता है कि हाउ डिड यू ब्लोन ऑफ योर लेग, तो क्या वार्ड में चली गई थी, तो उन्होंने बताया हाँ ऐसा ही हुआ था। देन ही ऑल्सो बिकम्स क्यूरियस अबाउट द क्रैब बबल्स। कहते हैं तो तुम लेडर पे कैसे चढ़ते हो, बिकॉज यू हैव वन टिल लेग, तो लेडर पे कैसे चढ़ते हो, क्रैब एप्पल्स कैसे तोड़ते हो, कैसे उतारते हो। तो कहते हैं कि ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब सीख चुका हूँ। क्यों, क्योंकि अब तो ईयर्स हो चुके हैं मुझे ये सब करते हुए, एंड आई एम यूज टू ऑफ डूइंग ऑल सच थिंग्स। जैसे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज फेमस डांसर मिसेस सुधा चंद्र। ये बहुत फेमस डांसर हैं, सब जानते हैं इनको, और ये भी जानते हैं दैट शी डजंट हैव अ लेग। वन लेग है उनकी और दूसरी आर्टिफिशियल लेग है, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड फेमस डांसर हैं। क्यों, क्योंकि इनकी लेग जब किसी वजह से एम्पुटेट हो गई थी, उसके बाद भी इन्होंने अपना डांसिंग नहीं छोड़ा, बिकॉज शी हैड द पैशन एंड शी वॉन्टेड टू डू। तो नेचुरली जब हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एंड इफ वी आर वेरी मच सर्टेन एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, देन नोबडी कैन स्टॉप अस, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो वही चीज़ यहाँ पर वो कहते हैं मिस्टर लैम कि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी सीखी हैं, ऑल्दो मेरी एक लेग नहीं है, फिर भी मैं सब कुछ काम करता हूँ अपने आप। अब कहते सालों मुझे हो चुके हैं ये। नाउ व्हाट डेरी सेज, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die. If you were on your own, I could. You said I could help you if you want to. But my mother will want to know where I am. It's 3 miles home. Across the fields, I'm 14, but they still want to know where I am. People worry. People fuss. Go back and tell them. It's 3 miles. It's a fine evening. You have got legs. Once I got home, they would never let me come back. Once you got home, you would never let yourself come back. You don't know. You don't know what I could do. No, only you know that. If I choose, if you choose. I don't know everything, boy. I can't tell you what to do. अब क्या कहता है, डायरी बोलता है हमको कि सपोज अगर आप गार्डन में अकेले हैं और आप ऐसे लेडर पे चढ़े हुए हैं, एंड इफ यू फेल डाउन, यू कैन डाई, मर सकते हैं आप अगर आप अकेले हैं। और फिर वो नाउ एक्चुअली ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम टू वर्क विद हिम। वो भी चाहता है कि वो उनके साथ आके क्रैब एप्पल्स तोड़े और फिर उनके साथ वो एंजॉय करे और वो भी उनके साथ जेली बनाने में उनकी हेल्प करे। लेकिन वो थोड़ा सा अभी हेजिटेट फील कर रहा है, और वो क्या सोच रहा है कि मिस्टर लैम उसको बोलें कि प्लीज़ तुम आओ। क्यों, क्योंकि उसका जो अपना एक सेल्फ कॉन्शियस है वो उसको अलाउ नहीं कर रही है, बिकॉज ही हिमसेल्फ थिंक्स दैट ही डजंट वांट टू गो नियर टू एनीवन। किसी के साथ वो क्लोज नहीं होना चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। और फिर वो खुद ही कहता है कि तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो अब वो कहते हैं हाँ। तो वो कहता है, फिर बाद में डेरी खुद ही कहता है कि मैं अगर अपने घर गया तो मेरी मदर मुझे आने नहीं देंगी, और क्योंकि वो मुझे जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। एंड ही सेज आई एम 14 का मतलब कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। नाउ आई एम अ 14 years old बॉय। जैसे आपने देखा होगा जो टीनेजर बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, वो ग्रोन अप हो चुके हैं, एंड दे कैन टेक इट देयर डिसीजंस देमसेल्व्स। तो उनको उनके डिसीजंस में उनके पेरेंट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऑल्दो ऐसा नहीं है, बिकॉज अभी तो लाइफ की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, और आपके पेरेंट्स को इतना एक्सपीरियंस है आपसे, मच मच मोर एक्सपीरियंस है, बिकॉज उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। और जब आप भी बड़े होंगे धीरे धीरे, तो आप भी अपनी एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपके पेरेंट्स जो भी कुछ आपको कहते हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए कहते हैं। दे वॉन्ट दैट देयर चिल्ड्रन मस्ट बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कल को अगर वो ना भी हों, फ्यूचर में अगर वो ना हो, तो उनका बच्चा पीछे से सफ़र ना करे, उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सब ऐसा ही चाहते हैं। तो अब वो ये कहता है कि मैं 14 ईयर्स का हो गया हूँ, फिर भी मेरी मदर जो है वो टेंशन करती हैं, वो वरी करती हैं कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कहाँ मिलने गया हूँ, एंड ऑल द थिंग्स। एंड शी वॉन्ट्स मी टू टेल ऑल द थिंग्स टू हर। मतलब मुझे कोई प्रिवेसी, जैसे आजकल बच्चे कहते हैं मुझे प्रिवेसी चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, आप क्यों इंटरफेयर करते हो मेरे कामों में। तो सेम में वो भी ये कह रहा है कि मेरी मदर क्यों बार बार मुझे इस तरह से बोलती हैं। नाउ मिस्टर लैम कहते हैं पीपल वरी, कि लोग वरी करते हैं, टेंशन करते हैं। तो कहता है नो, पीपल फस, वरी नहीं करते, वो परेशान करते हैं। परेशान कैसे करते हैं कि वो दुखी करते हैं बोल बोल के, वो शो ऑफ करते हैं कि वो तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो चिंता नहीं कर रहे, वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसा डेरी का मानना है।
क्योंकि डैरी एक 14 ईयर बॉय है, अभी उसने लाइफ बहुत पूरी तरह से देखी भी नहीं है। और मिस्टर लैम ही इज़ एन ओल्ड मैन और वो अपनी लाइफ को बहुत कुछ देख चुके हैं एंड ही हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इन हिज लाइफ। सो नाउ अब वो क्या कहता है कि कोई नहीं, तुम अपने घर जाओ और जाकर उनको बता के आ जाओ, अपने घर बताकर और फिर आइए। तो वो क्या कहता है, अगर मैं घर जाऊंगा और उनको बताने लगूंगा तो मुझे नहीं आने देंगे। और मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम खुद ही नहीं आओगे, अगर तुम घर जाओगे तो तुम खुद ही वापस नहीं आओगे। अब पहले डैडी ये कहता है कि मेरा घर इट्स नॉट सो नियर, इट्स 3 miles अवे, अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स आप कह सकते हैं कि इतनी दूर है मेरा घर। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो व्हाट, तुम्हारे पास 2 legs हैं, तुम आराम से जा सकते हो और जाके वापस आ सकते हो। इट्स वेरी फाइन इवनिंग, बहुत अच्छा डे है, बहुत आप कह सकते हैं जैसे प्लीजेंट वेदर है, तो तुम जाके वापस भी आ सकते हो। लेकिन तुम अगर एक बार जाओगे तो तुम खुद नहीं आओगे, क्योंकि लोग बोलते तो हैं कि वो वापस आएंगे लेकिन वो आते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मैं बहुत बार देख चुका हूँ। Now what he says, now daddy says, they tell me, do you have to agree? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, like this garden. I don't know what it is. You could find out. How? Waiting, watching, listening. Sitting here or going there. I'll have to see to the bees. Those people, other people who come here, do they talk to you, ask you things? Some do, some don't. I ask them, I like to learn. I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. अब ये दोनों जब डिस्कस कर रहे हैं तो डैडी क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो आप उसको कहते हैं कि अब तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। तब वो इसको लगता है कि जैसे तुम अकेले यहाँ रह रहे हो, मिस्टर लैम से कहते हैं कि जैसे आप यहाँ अकेले रह रहे हो, आपके पास इतना बड़ा गार्डन है, इतना बड़ा हाउस है, मुझे भी ऐसा गार्डन चाहिए, ऐसा हाउस चाहिए जो मेरा अपना हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम यू कुड फाइंड आउट, ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। तो कहते हैं कैसे? कहता वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग। यहाँ बैठो, मैं ज़रा बीज को देख कर आता हूँ, एज ही वॉज टेलिंग अबाउट द बी हाइव, तो देख कर आता हूँ। अब वो डैडी पूछता है, क्योंकि वो वहाँ बैठा तो है लेकिन उसके अंदर क्यूरोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ही इज अगेन एंड अगेन आस्किंग मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मिस्टर लैम। वो पूछता जा रहा है, पूछता जा रहा है, बिकॉज एक्चुअली ही इज गेटिंग द आंसर्स, और वो आंसर्स के थ्रू उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है। तो अब वो मिस्टर लैम से क्या पूछता है कि जो पीपल यहाँ आते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, क्या वो तुमसे बात करते हैं? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मैं ही शायद इससे बात कर रहा हूँ, कोई और शायद इससे बात करता ही नहीं होगा। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कुछ लोग बात करते हैं, कुछ नहीं बात करते हैं, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सबसे बात करता हूँ। अब कोई रिप्लाई करता है तो वो उसकी मर्जी है, नहीं रिप्लाई करता तो वो उसकी मर्जी है, बट मेरी अपनी क्या विश है दैट आई वांट टू टॉक टू पीपल, बिकॉज मुझे वो अच्छा लगता है, आई लाइक इट। अब वो क्या कहता है, डैडी उनको कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग यहाँ आते हैं तुम्हारी, बट मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे तुम्हारी केयर भी करता है, और तुम इतने यहाँ अलग रहते हो, मिजरेबल हो, मिजरेबल मतलब बहुत अजीबो गरीब हो तुम, और अगर तुम कल को डेड भी हो जाते हो, मर भी जाते हो, तो शायद कोई केयर भी नहीं करेगा, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, कोई परवाह भी नहीं करेगा। तुम जानते हो इस चीज़ को। तो अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं उसको, यू थिंक वॉट यू प्लीज, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। What are names? Tom, Dick, or Harry? Getting up, I'm off down to the bees. I think you are daft, crazy. That's a good excuse. What for? You don't talk sense. Good excuse not to come back. And you have got a burnt face, and that's all other people's excuse. You're like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you're frightened of me, of it. And if you are not frightened, you think I'm ugly or as a devil. I'm a devil, don't you? And then he shouts that, don't you think that I'm a devil? This way. And Mr. Lam doesn't reply. He doesn't say anything. He just kept quiet. And then अब क्या कहते हैं, मिस्टर लैम्स को कहते हैं, जब वो पूछ रहा है कि कौन आते हैं जिससे तुम बात करते हो, क्या नाम है उनके, तो वो कहता है टॉम, डिक, हैरी, कोई भी हो सकते हैं। तो कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही बुद्धू बना रहे हो, यू आर जस्ट क्रेजी मैन, कि तुम क्रेजी जैसे कह सकते हैं कि तुम पागल हो या सन की हो, इस तरह की बातें तुम कर रहे हो, क्योंकि जो यहाँ आते हैं वो तुमसे कोई बात नहीं करते हैं, तुम किसी का नाम भी नहीं जानते।
तो वो कहते हैं कि मैं 20 को देखने जा रहा हूँ, और फिर वो कहते हैं कि दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़। तो वो क्या बोल रहे हैं उसे, अब जैसे उन्होंने बोला कि तुम क्रेजी हो, तुम पागल हो, तो कहते हैं ये अच्छा एक्सक्यूज़ है मुझसे बात ना करने का। क्यों? जैसे हम किसी को कहें अगर बात कर रहे हैं तो ये छोड़ो हम तुमसे बात नहीं करते, तुम तो बेवकूफ़ हो, या तुम इडियट हो, या यू आर क्रेजी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, और ऐसा एक्सक्यूज़ देके हम निकल जाते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं मिस्टर लैम कि अच्छा एक्सक्यूज़ है मुझसे बात ना करने का, तो तुम नहीं बात करना चाहते मत करो, कोई बात नहीं, बट ऐसे एक्सक्यूज़ तो मत दो। और इसी तरह से बाकी लोग भी तुम्हें एक्सक्यूज़ देते हैं कि तुम अगली हो, तुम्हारा बर्न फेस है, इसलिए वो भी तुमसे बात नहीं करना चाहते। तो अब वो टेरी क्या कहता है, उसको गुस्सा आ जाता है, और वो क्या कहता है कि तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही तुम हो, तुम मेरे फेस के लिए कोई सॉरी फील नहीं कर रहे। सॉरी फील का मतलब कि तुम कोई सिंपथी नहीं दिखा रहे मुझे, तुमने ऐसा नहीं कहा कि ओहो लुक एट हिज फेस, बेचारा कैसा है ये, और देखो इसके साथ कितनी ट्रेजेडी हो गई, कितनी प्रॉब्लम हो गई, तुमने ऐसा कुछ नहीं शो किया, और तुम मुझे इस तरह से बातें सुना रहे हो। और फिर फर्दर क्या कहता है वो कि तो इसका मतलब तुम मुझसे डर गए हो, तो जैसे तुम डर गए हो ऐसे बाकी लोग भी मुझसे डर जाते हैं, और तुम भी ऐसा सोच रहे हो कि आई एम वेरी मच अगली जस्ट एज अ डेविल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हियर इज द डेविल। तो डेविल की तरह हूँ मैं एक डेविल हूँ, और कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कोई मुझे लाइक नहीं करेगा, और तुम भी नहीं करोगे, और तुम ऐसा सोच रहे हो चाहे बेशक तुम ना बताओ, और ऐसा शाउट करने लग जाता है। अब मिस्टर लैम कोई रिप्लाई नहीं करते, उनको लगता है इट्स बेटर दैट आई शुड कीप मम, चुप रहूँ, शांत रहूँ, और वो कुछ नहीं बोलते। तब डैडी, पहले तो वो चुप रहता है, देन ही सेज नो नो डोंट, आई लाइक इट हियर। देन डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स, I'm going, but I'll come back. You see, you wait, I can run. I haven't got a tin leg. I'll be back. अब डैडी क्या कहता है, चैलेंज ले लिया उसने। क्यों? क्योंकि मिस्टर लाम ने कहा कि तुम वापस नहीं आओगे, तुम जाओगे तो तुम वापस खुद ही नहीं आना चाहोगे, बट डैडी ने उसको चैलेंज एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एंड व्हाट डैडी डैडी सेज, अब वो चिल्लाता हुआ कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा। अब वो ये कहता है कि मैं वापस आऊँगा, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बोला कि मैं जा रहा हूँ तो इसका मतलब कि मैंने मिस्टर लैम की बात मान ली, कि मिस्टर लैम तो यही चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और क्यों मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं तो वापस आऊँगा। तो आप देख सकते हैं दैट ही इज़ वेरी मच एडमेंट एट दिस टाइम, कि बहुत, जैसे हम कहते हैं कि बहुत अड़ गया है अपनी बात पे। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं कि एक बात पे अड़ गए तो उसी को वो कंटिन्यू करते रहते हैं और जल्दी से मानते नहीं किसी और चीज़ को, सेम वे ही इज़ ऑल्सो बिहेविंग लाइक दिस। तो कहता है देखना मैं वापस आऊँगा, और ज़रूर आऊँगा, तुम वेट करो मेरी, और आई कैन रन। अब वो जान कर ये बोल रहा है कि मैं भाग सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसे टिन लेग नहीं है, मतलब अब वो अपना फेस जो है वो कम्प्लीटली भूल चुका है, वो ये भूल गया है कि उसका बर्न फेस है। अब वो टिन लेग की तरफ इशारा करते हुए या टिन लेग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे टिन लेग नहीं है, मैं भाग सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब हम ये देख रहे हैं कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हल्का सा हमें दिखने लगा है, राइट? अब वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप करने लग गया है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, Daddy runs off, silence, the sounds of the garden again. Then Mr. Lamb to himself, there, my dears, that's you see too. Ah, you know, we all know I'll come back. They never do. The, not them. Never to come back. The garden was his fate. अब क्या होता है, मिस्टर लाम अपने आप से बात करने लग जाते हैं, और वो हंसते हैं, और वो क्या कहते हैं कि हाँ, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, लेकिन कोई वापस आता नहीं। अब मिस्टर लैम ने ये बात कह तो दी कि सब आते हैं यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन वो शायद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा बोल रहे थे, बिकॉज रियलिटी में शायद ऐसा होता नहीं होगा कि बच्चे आते होंगे, वो शायद दोबारा नहीं भी आते होंगे, तो वो खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा बोल रहे थे। और फिर जब वो चला जाता है तब वो खुद ये कहते हैं, एक्चुअली ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ एंड ही सेज दैट अरे रहने दो, लोग आते हैं, बोलते हैं वापस आऊँगा, और कोई नहीं आता, तो कोई मेरे पास आता नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई यहाँ बैठना नहीं चाहता, तो तुम भी ऐसे ही हो, और कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा तो तुम भी नहीं आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी कम टू द सेकेंड सीन। अब क्या होता है, अब डैडी अपने घर जाता है, और वहाँ क्या होता है, डैडी और उसकी मदर जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। नाउ हिज मदर आस्क हिम, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। नाउ डैडी सेज, you should not believe all you hear. Being told, warned, we have not lived here 3 months, but I know what there is to know, and you are not to go back there. What are you afraid of?
What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden. And I want to be there and sit and listen to things. Listen and look. Listen to what? Bees singing, him talking, and what's he got to say to you? Things that matter, things nobody else has ever said, things I want to think about. Then you stay here and do your thinking. You are best off here. अब अपनी मदर से क्या बात करता है? उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे? तो नेचुरल सी बात है, जब बच्चा इतनी देर तक घर से गायब रहेगा तो वो जब आएगा तो मदर पूछेगी ही कि कहाँ थे तुम? तो सेम वे उसकी मदर पूछती है कि तुम कहाँ थे और तुम क्या, अब वो बताया जब उसने तो उसकी मदर कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि हम जानते नहीं हैं? क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, जो डिजर्टेड से घर में रहते हैं, आइसोलेटेड से रहते हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके पास नहीं जाने देते क्योंकि उनको डर लगता है कि पता नहीं वो कैसा है, किस तरह का इंसान है, वो लोगों से फ्रेंडली नहीं है, लोगों से बात नहीं करते हैं, तो देयर माइट बी सम रीज़न बिहाइंड इट। सो सेम वे हिज मदर इज़ ऑल्सो सिंगिंग, और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम जानते नहीं हैं? हमें सब पता है और हमने बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। तो डैडी क्या बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ सुनती हो सब पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अब आप यू कैन सी हियर दैट डैडी इज टॉकिंग द सेम वे एज मिस्टर लैम वाज सेइंग टू हिम, क्योंकि जब मिस्टर लैम को उसने बताया कि वो लेडीज मेरे बारे में बात कर रही थी तो उन्होंने यही बात बोली थी दैट यू शुड नॉट बिलीव वट एवर यू हियर, और सेम चीज वो अपनी मदर को बोलता है। इसका मतलब वो काफी कुछ कन्विंस हो चुका है मिस्टर लैम की बातों से और उनके परसेप्शन ऑफ लाइफ से वो भी कन्विंस हो गया है। तो वो भी उसका उसका लाइफ का परसेप्शन जो है, वो देखने का नजरिया है, वो भी काफी कुछ चेंज हो गया है। तो अपनी मदर को खुद कह रहा है कि जो कुछ सुनती हो सब पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हम जो कुछ सुनते हैं सारी बातें सही नहीं होती हैं। तो अब वो क्या कहती है उसकी मदर कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, वॉर्न किया है, जैसे नेचुरल पेरेंट्स जैसे बोलते ही हैं कि तुम्हें पहले भी बताया है ये नहीं जाना वहाँ पे, तुम फिर वहाँ पे चले गए, तुम्हें वॉर्न भी किया था, तुम्हें मना किया था। सेम वे उसकी मदर उसको डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हें वार्निंग भी दी गई थी पहले, और अभी हम यहाँ रहते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हार्डली 3 मंथ से हम यहाँ आए हैं और ज़्यादा हम किसी को जानते भी नहीं हैं, और यू आर नॉट टू गो बैक देयर, अब तुम वहाँ दोबारा से नहीं जाओगे, क्योंकि जो एक बार तुम्हें बता दिया वो बता दिया। जैसे हमारे इंडियन पेरेंट्स करते हैं कि जो एक बार बात बोल दी तो बोल दी, अब दोबारा तुम वहाँ नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, सिंपल। सो सेम वे यहाँ पे उसकी मदर भी उसको इसी तरह से बोलती हैं। लेकिन वो क्या कहता है अपनी मदर को, किस चीज़ से डरती हैं आप? आपको किस चीज़ का डर है? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप उनके बारे में क्या सोचते हो मिस्टर लैम के बारे में? ही इज़ एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है, टिल लेग है उनकी, किसी को हार्म नहीं करते, कि इतने बड़े घर में, ह्यूज हाउस में रहते हैं, जिनके घर में कर्टन्स भी नहीं है, गार्डन है इतना बड़ा उनका, कर्टन्स भी नहीं है, मतलब वो किसी चीज़ को छुपाते नहीं है। इट डजंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, किसी से कुछ छुपाते नहीं है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करते। तो उनका इतना बड़ा गार्डन है और मुझे वहाँ बैठना, वहाँ जाना अच्छा लगता है, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और क्या कहता है कि मुझे वहाँ लिसन टू थिंग्स, कि मैं वहाँ चीज़ों को सुनता हूँ। अब यहाँ पर हम ये देखने लगे हैं, पहले तो वो ओवर हियर करता था। ओवर हियर मतलब कि उससे कोई बात तो करता नहीं था, क्योंकि वो खुद ही नहीं किसी के पास जाता था, किसी से बात करता था, किसी से फ्रेंडली होता था, और वो किसी की बात सुनता ही नहीं था, वो ओवर हियर करता। ओवर हियर मतलब लोगों की बातें सुनना, कि लोग क्या बात कर रहे हैं, चाहे आपको समझ आए ना आए, चाहे आपको कंटेंट पता है नहीं पता है, चाहे आपको उनका कॉन्टेक्स्ट पता है नहीं पता, किस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, बट आप सुनेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो अब वो यहाँ पे वो कहता है कि लिसन टू थिंग्स, कि मैं वहाँ जाके क्या करना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अब उसकी मदर उसको कहती है लिसन टू वॉट, क्या सुनना है तुम्हें वहाँ जाके, जो कुछ सुनना है यहीं बैठ के सुनो, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। तो शी सेज कि लिसन टू वॉट, अब वो बता रहे क्या सुनना चाहता है, बीज सिंगिंग। नाउ मिस लैम टोल्ड हिम दैट बीज बज, बट आई से दैट बीज हम। अब वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि बीज हम करती हैं, गाना गाती हैं, सिंग करती हैं, तो लेकिन लोग कुछ और बोलते हैं, तो उनका परसेप्शन कुछ और है और मेरा कुछ और है। तो सेम वे ही इज ऑल्सो सेइंग कि बीज सिंगिंग, कि बीज वहाँ पे गाना गाती है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, हिम टॉकिंग, उससे बात करना चाहता हूँ मिस्टर लैम से। तो अब वो उसकी मदर वो परेशान हो जाती है और उसकी मदर उसको कहती है कि व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, कि क्या बोल दिया तुम्हें, ऐसा ऐसा क्या कह दिया, जैसे नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं कि अरे ऐसा क्या खिला दिया तुम्हें, या तुम्हें क्या ऐसा कर दिया उसने कि तुम उन्हीं की बातें करने लगे हो या तुम उन्हीं के फेवर में बात करने लगे हो। तो वही उसकी मदर कहती है कि ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें उन्होंने, उस मिस्टर लैम ने। तो वो कहता है बहुत सारी चीज़ें बोली, ऐसी चीज़ें जो मैटर करती हैं लाइफ में, जो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोली थी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे करी, बातें सुनी उनकी,
और ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ, वो सब बातें उन्होंने मुझसे कही और अब मैं वहाँ जाके सोचना चाहता हूँ। तो उसकी मदर क्या कहती हैं उसे कि ऐसा है, अपने घर में बैठो, यहीं बैठ के सोचो, यहीं बैठ के लिसन करो। मतलब यू जस्ट सिट एट योर होम एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इफ यू वॉन्ट टू लिसन समथिंग जस्ट सिट हेयर एंड लिसन, एंड इफ यू वॉन्ट टू थिंक समथिंग जस्ट थिंक हेयर। मतलब जो कुछ करना अपने घर में बैठ के करो। सो यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, कि तुम यहीं पे बढ़िया हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पता चला कहीं और जाके किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गए और कुछ और ही कर बैठे, या अगर पता चला कि किसी और के घर गए तो वहीं जाके बस गए, वहीं रहने लग गए। तो इस तरह से उसकी मदर उसको रोक लेती हैं। नाउ डैडी, आई हेट इट हियर। तो उसकी मदर कहती हैं, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। It's got nothing to do with my face and what I look like. I don't care about that, and it isn't important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I'm going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen, but I'm going. You'll stop here. Oh no, because if I don't go back there, I'll never go anywhere in this world again. The door slams, Danny runs, panting. And I want the word, I want it, I want it. Now what happens? मदर कहती है कहीं जाना नहीं है, अपने घर में बैठो। लेकिन वो कहता है कि आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता, आई हेट द प्लेस। अब उसकी मदर को ये लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि एक तो मेरे बेचारे बच्चे का फेस वैसे ही बर्न है, वो वैसे ही उस सेल्फ कॉन्फिडेंस है नहीं उसमें, ही इज़ हैविंग लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ऊपर से मैंने इतना सब कुछ अपने बच्चे को सुना दिया। तो कहती है आई फॉरगिव यू, चलो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम जहाँ भी गए थे कोई बात नहीं, तुमने मुझे बता दिया, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब मुझे मालूम है इट्स बाउंड टू मेक यू फील, तुम्हें चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तुम्हें बुरा लगता है, एंड जो कुछ कहना है मुझे कहो, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अब डैडी को ये लगता है कि इसका इससे मेरे फेस से कोई कंसर्न नहीं है। मतलब उसकी मदर को लगा कि शायद ये परेशान हो रहा है, इस वजह से ऐसे बोल रहा है। तो कहता है इसका मेरे फेस से मम्मी कोई कंसर्न नहीं है, मैं फेस से रिगार्डिंग बात ही नहीं कर रहा, एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट, कि मैं इसकी परवाह भी नहीं करता। अब आप देखिए उसका परसेप्शन कितना चेंज हो गया है। पहले वो सिर्फ अपने फेस को लेके टेंशन में रहता था, हर वक्त वो अपने फेस को उसने इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई थी, दैट ऑल द टाइम ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज फेस, हिज बर्न फेस। बट दिस टाइम ही इज कंप्लीटली चेंज। व्हाट ही सेज दैट आई डोंट केयर अबाउट इट, कंप्लीटली केयरलेस, अपना केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फेस। मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरा फेस कैसा है, मैं परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे। जैसे बहुत लोग कुछ भी काम करने से पहले, अरे ये नहीं करना, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। जैसे आपने 3 इडियट्स में भी देखा होगा, तो लोगों ने क्या करना है, लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही है, उनकी तो आदत है। वो अगर अच्छा नहीं कहेंगे तो बुरा कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे तो अच्छा, लेकिन नॉर्मली अच्छा कम ही कहते हैं। तो इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन एक चीज़ का हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखिए कि जो भी वट एवर यू आर गोइंग टू डू, दैट शुड बी गुड डीड्स। मतलब कोई अच्छा काम हो जिससे आपका और दूसरों सबका भला हो। मतलब एक ह्यूमन मैनकाइंड के लिए कुछ अच्छा काम होना चाहिए, तो ऐसा काम करिए। ये नहीं कि अपना भी बुरा कर लिया और दूसरे का भी, नहीं, वो नहीं। आप कुछ करिए, आपकी कॉन्शियस अगर आपको अलाउ करती है, आपका मन कर रहा है, या आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो आप उनको समझाइए, उसके पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स सब कुछ बताइए। आप खुद भी सोचिए, उनको भी बताइए, और उसके बाद करिए। और ये ज़रूर सोचिए कि उस आपके काम का मैनकाइंड पे, बाकी लोगों पे, आप पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इफ़ इट्स गुड फॉर एवरीवन देन यू मस्ट गो ऑन। तो अब वही चीज़ वहाँ वो बता रहे हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता और मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा, एंड व्हाट आई थिंक एंड आई फील, जो कुछ मैं सोचता हूँ, मैं फील करता हूँ, वो सब पहले था। मैं इस सब के बारे में अब नहीं सोच रहा। मैं देखना चाहता हूँ, मैं और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मतलब मैं सब कुछ सर्च करना चाहता हूँ, मैं लाइफ को देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक तो वो बंद था, अब वो खुला है, अब वो ओपन एरिया में गया है, अब वो बहुत चीज़ों को देखने लगा है। अभी तो जाके उसका परसेप्शन चेंज हुआ है, अभी तो उसने उसने अपना नज़रिया चेंज किया है। तो वह चाहता है कि अब सब कुछ देखे वो अपनी लाइफ में, और हर चीज़ को क्लोज जाके देखे और समझे। तो वो यही बात कहता है, और कहता है कि मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ। और किस लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाके क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में उनकी हेल्प करूँगा, मिस्टर लैम की।
और मैं चीज़ों को देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, एंड बट आई एम गोइंग, कि मैं जाता हूँ। अब उसकी मदर उसको फिर भी स्टॉप करती है कि तुम यहीं रुकोगे, कहीं नहीं जाओगे। प्रेशराइज करती है उसको कि नहीं, कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रुको। जैसे मम्मियाँ या मम्मी होती हैं, वो डांटती हैं बच्चों को कि नहीं, कहीं नहीं जाओगे, यहीं पे रुको घर में। तो इसी तरह से वो भी, उसकी मदर भी ऐसे बोलती हैं उसे, बट वो फिर भी डिनाई करता हुआ और गुस्से में और भाग जाता है। द डोर स्लैम्स, जोर से डोर को धक्का देता हुआ और चला जाता है वहाँ से। और ये चिल्लाता हुआ चला जाता है क्या, दैट आई वॉन्ट द वर्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। मतलब पहली बार उसने इस वर्ड में कुछ देखा है, कुछ चाहा है, तो वो यही शोर मचाता हुआ निकल जाता है। और धीरे धीरे व्हेन ही गोज आउट, हिज वॉइस इज फेडेड, उसकी आवाज़ धीरे धीरे फेड होती जाती है, मतलब स्लो होती जाती है। नाउ व्हाट हैपन्स दैट ही वेंट टू द लैम्प्स गार्डन। अब वहां तो पहुंच गया। अब बाकी चीज़ों की आवाज़ जो है वो आ रही हैं। नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल थम्बिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, मतलब एक ब्रांच से उन्होंने एप्पल तोड़ा, फिर वो वापस ब्रांच वहाँ चली जाती है, और फिर उसके बाद वो एप्पल के नीचे फेंक देते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। मतलब ये सब आवाज़ें वहाँ आ रही हैं। एंड मिस्टर लैम, स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, एंड अगेन दैट्स इट, एंड। अब मिस्टर लैम अपने आप से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अकेले रहते हैं, और अकेले रहते तो अपने आप से बातें करते रहते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो अपने आप से ही बातें करते हैं। ऐसे इसमें कोई बुराई भी नहीं है। नॉर्मली ऐसा कहा गया है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कई बार अपने आप से भी बातें करते हैं। आप में से भी बहुत लोग करते होंगे ऐसा। तो आप ये मत सोचिए कि कोई डिसेबिलिटी या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने आप से बातें कर रहे थे। अब वो बातें करते क्या कर रहे थे कि बहुत सारे एप्पल्स तोड़ लिए, अब मुझे उतरना चाहिए, अब बहुत हो गया। तभी क्या होता है, अ क्रीक, अ क्रैश, द ladder falls back. Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back, creaks, then silence. Daddy opens the garden gate, still panting. Now what Daddy says, you see, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. He stops dead. Silence. Mr. Lamb, Mr. Lamb, you have? Then he runs through the grass, stops, kneels. Mr. Lamb, it's all right. You fell. I'm here. Mr. Lamb, it's all right. It's all right. Everything will be fine. Just wait, wait. And this way, silence, complete silence. अब क्या होता है, जैसा आप समझ गए कि मिस्टर लैम जैसा डैडी पहले से बोल के गया था, और वही चीज़ हो गई कि मिस्टर लैम ने सारे आपस तो तोड़ लिए, एंड सडनली उनकी जो लैडर है वो क्रैश हो गई और वो गिर गए। उस लैडर से जैसे ही गिरे तो क्या होता है, वो ग्रास पे गिरते हैं, टिल नेक तो वैसे ही थी, और वो ही डाइज, मर जाते हैं। अब गार्डन का गेट खुलता है, और जो डैडी अपने घर से शोर मचाता हुआ निकला था, सेम वे इज कमिंग इनटू द गार्डन एंड ही वाज अगेन सेइंग आई वांट द वर्ड, आई वांट इट, आई वांट इट, इस तरह से बोलता हुआ वो आ रहा था। बट क्या देखता है कि वहां पे मिस्टर लैम जो है वो गिरे हुए हैं, और मिस्टर लैम को यही बोलता आता है कि यू सी, देखो देखो, मैं वापस आ गया। तुमने मुझे बोला था कि तुम नहीं आओगे वापस, मतलब तुमने मुझे चैलेंज किया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आ गया। सो लुक एट मी, इट मीन्स कि आई वन, कि मैं जीत गया, मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि मिशन कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि मिस्टर लैम ने कहा था कि लोग बोल के जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते, और डैडी बोलता है कि जो मैं करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ। सो वो अब आता है, लेकिन क्या होता है कि वो जैसे देखता है कि मिस्टर लैम जो है वहाँ गिरे हुए हैं, वो वहाँ बैठता है। नाउ it says that stops, kneels, as you can see on the screen, he was sitting on his knees, और वो बैठा हुआ है, he was checking him, and what he says that it's all right, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, nothing will happen, you fell, तुम गिर गए हो, and I'm here, I'll take care of you, मैं देख लूंगा तुम्हें, और ऐसा बोलता है। But what he found that it was complete silence, complete silence। और फिर क्या कहता है, I came back, lammy lamb, I did come back, Daddy begins to weep। अब क्या कहता है, देखो मैं वापस आ गया लैमी लैम, कम बैक, आप भी वापस आ जाओ, और वो रोना शुरू हो जाता है। एंड जस्ट आफ्टर दैट द स्टोरी फिनिशेस। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा इससे, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है जो हमारी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी का काम कर सकती है, बिकॉज इट गिव्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉरल्स टू अस। बहुत मैसेजेस देके जाती है ये स्टोरी हमें। कैसे मैसेजेस, आप खुद सोचिए। नंबर 1, डैडी
जो अपने ऊपर बिलीव नहीं करता था, ही डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस, लेकिन धीरे धीरे ही स्टार्टेड हैविंग द कॉन्फिडेंस इन हिम, ही स्टार्टेड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन हिम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो हम ही हैं जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो हमें कभी भी अपना मोराल बूस्ट करते रहना चाहिए, कभी मोराल डाउन नहीं करना चाहिए। किसी के भी कहने पे कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बात करे, जो मर्जी बोले, हमें दूसरों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वो बात कर रहे हैं वो सही हो। और एक लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि अगर लोग आपके बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ हैं जो आपके बारे में दूसरे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं और उसमें नहीं है तो नेचुरली दे विल फील जेलस एंड दे विल टॉक अबाउट यू। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये ह्यूमन का नेचर है कि जो चीज़ उनके पास नहीं होती और दूसरे के पास होती है तो वो उससे जेलस फील करते हैं और उसके बारे में बात भी करते हैं। तो अगर आपके बारे में कोई बात करे तो आप कभी बुरा मत मानिए, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट यू हैव समथिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट यू, कि आपको वो अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपके अंदर है जो उनके पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमें मिलता है। देन एक और मैसेज हमें क्या मिलता है कि हमें सबकी बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो सोचते हैं सुनते हैं उस पर हम बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, मान लेते हैं, और अपनी बातों को अपने अब जो हमारा इनर कॉन्शियस हमें जो बोल रही है हम उसको नहीं सुनते। हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि जो हमने सुना वही सच है, लेकिन ये बहुत गलत है। आप अपनी सोसाइटी में भी देखिए, अपने नेबरहुड में भी देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको गलत गाइड करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा सुनाने की समझाने की कोशिश करेंगे जो सही नहीं है। बट डोंट ट्रस्ट ऑन दैट। कभी किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं या बुरे के लिए। क्योंकि आपकी लाइफ में जितना क्लोज आपके पेरेंट्स हैं उतना कोई भी नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स और चिल्ड्रन ये इनका ऐसा रिलेशन होता है जो अनकंडीशनल लव होता है। पेरेंट्स कभी अपने बच्चों से कोई कंडीशन नहीं रखते, वो उनसे इसलिए लव या अफेक्शन नहीं दिखाते कि उनके बच्चे उनको कुछ देंगे। हम बाहर कभी भी किसी से कोई फ्रेंडशिप रखते हैं या किसी से बात करते हैं, कोई हमारा फ्रेंड है या कोई और भी रिलेशन हो, तो सब में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। लेकिन पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशन है उसमें कभी कोई कंडीशंस नहीं होती। दैट्स वाई वी कॉल इट्स अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन। सो आप अपने पेरेंट्स पे पूरा ट्रस्ट करिए कि वो आपके लिए जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि शायद वो गलत कह रहे हैं तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आप उनको समझा सकें कि जो बात आप कह रहे हैं या आप समझाना चाह रहे हैं वह सही है। और वो सही कैसे है उसके लिए आपको भी पता होना चाहिए कि उसके क्या पॉजिटिविटी और क्या नेगेटिविटी है। तो इसके लिए कुछ भी काम करने से पहले उस पर अच्छे से जस्ट थिंक ओवर इट। ऐसा नहीं कि किसी से सुना बोला और अपना करना शुरू कर दिया। नो, आप पहले अच्छे से सोचिए समझिए और फिर उसके बाद ही उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लीजिए। और कभी भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले जल्दी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे डिसीजन हमारे लाइफ में लाइफ चेंजिंग डिसीजंस का काम करते हैं। और सबसे मेन मैसेज जो है दैट यू शुड बिलीव ऑन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखेंगे तो आप जो चाहें जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर ही बिलीव नहीं करेंगे तो दूसरे पे कैसे बिलीव करेंगे। एंड कोई दूसरा कभी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। हमेशा लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, योर सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं है तो बाहर से आप चाहे कितनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, सुन लीजिए, लोगों की बातें सुन लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है। तो उसको खुद ही क्रिएट करना होगा, खुद ही आपको मोटिवेट करना होगा अपने आप को। हाँ, आप लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं, बट मोटिवेट आपको अपने आप को खुद करना है। अब आप सोचेंगे मैं लेक्चर देने लगी हूँ, बट इट्स नॉट अ लेक्चर, बिकॉज ये बहुत सारे मैसेजेस हमें स्टोरी से हमें मिलते हैं जो आप बहुत ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम अभी नहीं समझ पाए, लेकिन वो लेटर ऑन आपको ये बातें समझ आएंगी, बिकॉज राइट नाउ यू आर वेरी यंग एंड व्हेन यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ देन यू कम टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो आपने वीडियो देखा, आई होप कि आपको अच्छा लगा। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो, तभी तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियोस, बिकॉज आपके कमेंट्स जो है वो हमेशा मोटिवेटिंग होते हैं मेरे लिए।
And further, I want to say that I have provided the important question answers of this lesson as well as practice test also in my description box. You can go to the description box and check all the things. Thank you very much. Thanks for watching the video.